Assalamu alaikum, everyone. My name is Dr. Amna Khawar, and I'm working as assistant professor and PhD coordinator in the Department of Applied Psychology, Lahore College for Women, University Lahore. And my area of specialization is positive psychology, and I proudly announce myself as a positive psychologist. And for giving you a little bit introduction before starting, that positive psychology is relatively a newer branch in psychology because before that psychology may we used to emphasize more on mental illness diseases symptoms and then curing and treatment of those diseases, but now with the help of latest research we have found that if we change certain of our behaviors and actions and our thoughts, we can mold ourselves. Believe me, you are like a clay. Okay, yourself, just take it as an example that you are made up of clay and you can mold yourself and your life circumstances as the way you want them to be. This is the effect of positive psychology, that we handle the situation before the problem comes. So I'm here today for the training, or you can say the workshop of well-being and mental health. And I think this is one of the most important aspect for growth in life. If you really want to grow, and we talk about job satisfaction, life satisfaction, then well-being and mental health are one of the most important factors that you should be knowing. So I'm starting from a little introduction about what well-being is, because there are a lot of participants. I actually wanted to have introduction with all of you, but unfortunately, because I'm running short of time, there's very little time, and I just saw that there are, mashallah, a lot of number of people. So you must be all from different disciplines, and some of you may have a little concept about well-being. लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को मैं चाहूंगी कि मैं दोबारा से बता दूं that it refers to the positive and fulfilling state of being. Like, for example, when we say we sometimes we ask a friend, I call a friend, my friend, and I say, how are you doing? And she says, when she's feeling down, she says, oh, okay, I'm living, I'm breathing, I'm alive, like such kind of answers. So you're not just breathing and you're not just alive, you are actually a positive and fulfilling individual who is enjoying life to the fullest. And it includes various aspects of individual's life, and you can say that these are the factors or aspects of well-being, that well-being is incomplete without all of these aspects. It includes your physical health, your emotional health, your mental health, social connections that you make, your spiritual well-being, and last but not least, your own personal growth that matters. I think for job, all of these factors are important, but personal growth is the most important one. And personal growth is impossible because without all of the above aspects. So we will be dealing with these aspects one by one. The objective of that I have said for you is that I'll give you a brief introduction of all the aspects of well-being so that you can understand what well-being is. And then we will be comparing well-being with mental health and what life satisfaction is, what job satisfaction is, and how. And then the most important aspect comes how you can improve your well-being, because your well-being is going to affect your job satisfaction and your personal growth. And in the long run, it is going to affect your overall personality and everything. So I will be giving you a few tips and techniques that you can, as a psychologist, which you can do by yourself in order to improve yourself. So let's start with the aspects of well-being. The first aspect is the physical well-being. So your physical health is the most important component of your well-being. If you're not physically fit, you cannot feel happier, you cannot feel satisfied, you cannot feel fulfilled. So it includes your, physical health की जब हम बात करते हैं, तो we define it as the absence of disease or illness, which is I think quite impossible these days, living in Pakistan with such circumstances, poor living conditions, yeah, quality of food is not good, quality of air is not good. Obviously, this is very difficult, but actually, this is how WHO defines health, that it's the absence of disease or illness, or at least if disease or illness is there, then you're coping with that disease or illness
well. ठीक है, क्योंकि obviously the ratio of diabetes and hypertension is quite high in our society. But even though we have diabetes or even though we have hypertension, if we are coping well with the disease and we are fulfilling or having a fulfilled life, then I think we can say that the individual has good physical health. Second is physical fitness, which is most important thing. We think that when we turn 40 or when we get diabetes or when we get hypertension, then we start doing exercise. या फिर जब हम बहुत ज़्यादा weight gain कर लेते हैं और लोग हमें feedback देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आपने gain कर लिया, तो फिर हमें ख्याल आता है अच्छा चलो exercise करते हैं. And exercise is done in Pakistan for the purpose of losing weight only, which is wrong. Exercise never helps you lose weight. Exercise आपके मसल्स को टोन अप करता है, आपकी बॉडी को, आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करता है. मतलब वो ज्यादा फास्ट काम करना शुरू कर देता है और बॉडी को ज्यादा फिट करता है. इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिजीजेस इंक्लूडिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, cancers, and many other physical illnesses. So this concept should be removed. Like every individual should have at least half an hour exercise every day. और जब आपकी body in ketosis आ जाती है, in the beginning you start from 15 minutes, take it to half an hour, and when the body is in ketosis, then you can get back to 3 days a week. बॉडी अगर हो गई है केटोसिस में आ गई है, ठीक है, तो आप 3 days a week आधे घंटे की एक्सरसाइज भी करें तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिकल फिटनेस की या एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत ज्यादा है बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग एक्सरसाइज, इसके ड्यूअल फायदा. एक तो ये कि आपको फिजिकली फिट रखती है, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिजीजेस एंड एलिमेंट्स. सेकेंडली, इट ऑल्सो आफ्टर डूइंग हाफ एन आवर कार्डियो एक्सरसाइज, आपके हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, इनको हम कहते हैं एंडोर्फिन्स, या कॉमन लेमन टर्म में हम इनको हैप्पीनेस हॉर्मोन्स भी कहते हैं. So these hormones, when these hormones are released, endorphins, they release happiness. So you feel relaxed and calm. So it has a dual effect, right? Next one is nutrition. That is what you are giving your body. Are you having a balanced diet or you are going for junk food? Again, it also has a dual effect directly on your physical health. Obviously, when you eat balanced diet, your physical health would be good. Secondly, it also has an effect on your psychological health as well, because research has proved that junk food increases irritation, agitation, anxiety, and stress, especially high calorie food, high sugary drinks. इनका effect जो होता है, ये एक drug की तरह होता है. दैट शुरू में ये आपको बहुत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसका सडन विड्रॉल होता है. और सडन विड्रॉल होता है तो ऑब्वियसली यू माइट हैव you might experience some symptoms of anxiety, depression. Or तो इसलिए we always suggest that one should have balanced diet. Then sleep is very important. Again, a very wrong concept and misconception that working day and night, if you want to achieve a certain goal, you have to work day and night. And a very wrong concept in students these days that they wake the whole night for exam. One day before exam, which is wrong because psychologists and scientists, researchers have proved that at least 7 to 8 hours of sleep is important for a fully functioning individual. If you're not taking 7 to 8 hours of sleep, then that means that you are harming your physical as well as your psychological health. And when I say 7 to 8 hours of sleep, means कि वो sleep कंटिन्यूअस स्लीप है 7 to 8 hours विदाउट एनी इंटरप्शन. ऐसा नहीं है कि आपने दिन में पूरे 7 to 8 hours पूरे करने हैं तो आप उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं. नो, कंप्लीट 7 to 8 hours विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. देन फिजिकल एक्टिविटी, इसको मैंने फिजिकल फिटनेस के साथ डिस्कस कर लिया था, दैट रेगुलर एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट. And then pain management is very important. Pain is something which is really difficult to bear with. When you are in pain, you cannot concentrate on your work, you cannot concentrate on anything, and you cannot grow as an individual. तो well-being तो बहुत दूर की बात है. तो it's very important कि अगर किसी भी ailment की वजह से, किसी भी disease की वजह से या tiredness की वजह से, if you are experiencing any kind of pain, then contact your physician. And there are so many pain management techniques, psychological techniques भी हैं और medically भी available हैं. You can seek help, and I think your first priority should be pain management in that sense. And last but not least, hygiene is most important, which is again a very ignored area. Hygiene का भी dual effect है.
आपके ऊपर डायरेक्टली। आपकी फिजिकल हेल्थ पे मेंटेनिंग पर्सनल क्लीननेस एंड ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट because it keeps you away from germs, bacteria, viruses, fungi, and lots of other diseases. Secondly, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है. व्हेन यू आर क्लीन, यू आर लुकिंग गुड, यू आर ग्रूमिंग, तो आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, और नेचुरली सेल्फ एस्टीम हाई होती है तो आपकी वेलबींग भी बेहतर होती है. फिजिकल वेलबींग is basically fundamental aspect of overall well-being, because it enables individual to perform daily tasks, maintain independence, and enjoy life to the fullest. Next is emotional well-being. जितना इम्पोर्टेंट मेरा ख्याल है फिजिकल वेलबींग है, सेकेंड एस्पेक्ट इमोशनल वेलबींग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. नाउ द वर्ड इमोशन इज यूज्ड वेरी कॉमनली अमंग अस दैट वी आर फीलिंग इमोशनल, या हम किसी और के बारे में कहते हैं कि वो बहुत इमोशनल हो रहा है, सेंटिमेंटल हो रहा है. तो इमोशनल का जब हम वर्ड यूज करते हैं तो इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस आर योर फीलिंग्स दैट यू एक्सप्रेस. दे हैव अ बिहेवियरल component, that जो आपका एक्सप्रेशन का कंपोनेंट होता है. दे हैव अ कॉग्निटिव कंपोनेंट, व्हाट यू आर थिंकिंग एट दैट टाइम. ठीक है, जो आप फील कर रहे हैं उसको आप सोच भी रहे होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इट इज मेड अप, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स situation. But the problem with emotion is that sometimes we lack expressing proper emotions at proper time, जो कि आपकी इमोशनल वेलबींग को हार्म कर सकता है. सो बेसिकली व्हेन वी डिफाइन इमोशनल वेलबींग, वी से दैट इट्स द एबिलिटी टू इफेक्टिवली मैनेज एंड रेगुलेट वंस इमोशंस. सो व्हेन वी से रेगुलेट इमोशंस, मींस कि इमोशंस अगेन आर अंडर योर कंट्रोल. जैसे मैंने आपको कहा कि यू आर लाइक अ क्ले. वैसे भी आप क्ले के बने हुए हैं, बट इमेजिन कि आप खुद अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं. सो हाउ एक्साइटिंग एंड क्रिएटिंग इट इज दैट you can create your life circumstances, and you can make yourself happy. It's in your hand. So regulate emotions means कि emotions again आपके अपने control में है, but you have to practice how to regulate emotions. It's not easy. When I say that, when I practice positive emotions and I felt that change, certain change in my body, or in my personality, or in my life, but actually it took a lot of time practicing those positive emotions. So regulating emotion means कि आप situation के accordingly अपने emotions को regulate करें. ठीक है, obviously anger is a very basic human emotion. We do feel angry, we do feel disgust, we do feel hatred for people, jealousy भी होती है. So all the positive emotions do exist, but if we learn how to regulate those negative emotions and convert them into positive ones, or obviously you need outlet. तो किस टाइम पर और किस वक्त पे इमोशनल एक्सप्रेशन आपने देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज समथिंग दैट वन नीड्स टू लर्न, बिकॉज हम वहां पे अपनी सेल्फ को लूज कर देते हैं जहां पे हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और हम वहां पे ऐसा कुछ बोल देते हैं जिसके सर्कमस्टेंसेस हम फिर फॉर लाइफ टाइम बेयर करते रहते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न when to speak, where to speak, and how to speak, and how, because emotion, obviously you cannot hide your emotion. I'm not asking you to hide your emotion, I'm just asking you to regulate those emotions. कि आप according to situation, according to your need, किस तरीके से अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं, एंड देन उसको एक्सप्रेस भी करते हैं, कन्वे भी कर रहे हैं टू द इंडिविजुअल व्हाट यू फेल्ट एट दैट टाइम, but wait for the appropriate time to express. So it has different components further. First of all, emotional awareness, that you should be aware of your emotion, what you are feeling, recognizing you and understanding कि आपकी feelings क्या. Are you feeling happy? Are you feeling disgusted? Are you feeling angry? Are you feeling fearful? Are you feeling energetic? What are you feeling? First of all, अपने emotions को acknowledge करें. हम जब तक label गेम खेलते रहते हैं ना, we always label that I'm feeling angry because of that certain person, or because of that certain act that happened. ठीक है, so whenever we are playing the blame game, हम अपने emotions को accept नहीं करते. So accepting your own emotion is the first step. जब आपको पता चलेगा कि yes, I'm feeling angry, right? तब आप चेंज करेंगे. आप कहेंगे आई एम फीलिंग एंग्री एंड आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू रेगुलेट माई इमोशन, एंड आई हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन. सेकेंड स्टेप पे रेगुलेशन आता है कि अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, यस आई एम फीलिंग एंग्री, नाउ अब मैंने सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, किस तरीके से मैंने अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है. एंड थर्ड,
इमोशनल एक्सप्रेशन, अब मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपने उस इमोशन को दबा देना है, ठीक है, लेकिन जिस टाइम पे आपको बहुत गुस्सा आया उस टाइम पे आपने सिचुएशन को कंट्रोल किया. नाउ effective communication is required. How you're going to effectively communicate to people that you felt bad about this thing and you don't want this to happen again. ठीक है. एंड उसमें प्रॉब्लम ये होता है व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल, एक हॉट डिस्कशन जब क्रिएट होती है तो what we have seen is that people lose temper because they have lack of patience. तो उसके लिए जो टेक्निक्स हम सिखाते हैं वो कहते हैं कि आपने अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना. अगेन व्हेन आई आस्क यू टू डेवलप समथिंग इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ऐसा नहीं होगा कि मैं आज आपको कहूंगी कि आपने पेशेंस डेवलप करना है और आपके अंदर हो जाएगा. यू हैव टू प्रैक्टिस इट. और हम क्लिनिक में एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं इस तरह की, जिसमें हम एंगर मैनेजमेंट के लिए ये चीज यूज करते हैं. तो आपने सबसे पहले पेशेंस से उस एक बंदे का या जितने भी मल्टीपल पीपल हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है, एंड देन you have a right to convey your point of view as well. But the way of conveying is that your tone should be controlled. Always remember one thing, that the other person will start with the tone in which you ended. अगर तो आप जो है आपकी टोन बहुत लाउड थी, ठीक है, एंड आपने वहां पे एक लाउड टोन में एक सेंटेंस एंड किया, तो अगले की उसी टोन से नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा. सो बेसिकली योर टोन मैटर्स अ लॉट. देन नेक्स्ट इज योर इमोशनल एक्सप्रेशन. इमोशनल एक्सप्रेशन, सॉरी, मैं इमोशनल एक्सप्रेशन को ये एक्सप्लेन करी थी कि इमोशनल एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन यू हाउ यू कैन एक्सप्रेस इट, कि आप पहले दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं पेशेंस से, और फिर आप कहते हैं यस आई एग्री. ऑलवेज स्टार्ट बाय सेइंग दैट यस आई एग्री विद यू, बट आई फील दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, right? Then next is emotional connection. Emotional connection is again very important, that how you are binding with the society, how you are maintaining meaningful relationship with other people around you, your social circle, your social support, that matters a lot. Third one is mental well-being. Mental well-being refers to the health and functioning of an individual's mind. It includes cognitive functioning, emotional regulation. इसमें दोबारा से emotional regulation आ रहा है, psychological resilience, self-awareness, self-acceptance, purpose and meaning in life. So अक्सर लोग पूछते हैं कि emotional well-being में और mental well-being में क्या फर्क है. So basically, emotional well-being only deals with emotions, whereas mental well-being आपकी thinking, आपके cognitive processes को भी deal कर रहा है. आप साथ देखो इसमें emotions भी आ रहे हैं, साथ इसमें आपके psychological resilience भी आ रही है, awareness about yourself भी आ रही है, self acceptance भी आ रही है, and purpose and meaning in life भी आ रहा है. तो इसको बारी बारी देख लेते हैं हम कि क्या है. फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव फंक्शनिंग. कॉग्निटिव फंक्शनिंग में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि इट्स एबिलिटी टू थिंक, learn, and learn to solve your problems, how you can solve your problems. ठीक है. Now think in a positive way, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया जाता है नेगेटिव थिंकिंग, कि हम किस तरीके से नेगेटिव वे में सोच सकते हैं. बिकॉज व्हेन वी आर बोर्न, नेगेटिव इमोशंस को ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है. हमारे ड्रामाज में भी आप देखेंगे कि नेगेटिव इमोशंस को ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है. सो वी हैव लर्न द एक्सप्रेशन ऑफ नेगेटिव इमोशंस, लेकिन पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करना हमने कभी सीखा ही नहीं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव इमोशंस को सीखें, कि हाउ टू एक्सप्रेस योर पॉजिटिव इमोशंस, हाउ टू थिंक पॉजिटिवली. हर सिचुएशन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं. वट एवर हैपन्स विद यू, वेदर दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्स कोई सिचुएशन भी हो जाए, देयर आर ऑलवेज टू एस्पेक्ट. वन इज द नेगेटिव एस्पेक्ट and the other one is always the positive aspect. And unfortunately, this is human tendency that we neglect the positive aspect. हम उसको जो है ना वो इतना ज्यादा एम्फसाइज नहीं करते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारी अपब्रिंगिंग में ये चीज ही नहीं है. सो हम लर्न करवाते हैं कि किस तरीके से आप अपनी थिंकिंग में पॉजिटिविटी को ऐड कर सकते हैं. एंड दिस हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो सबके इतने अच्छे नहीं होते. सम पीपल गेट पैनिक जब भी व्हेन दे आर फेस्ड विद अ प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. पूरा एक कंप्लीट एरिया आई थिंक जिस पे एक अलग ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है. बट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको सीखने बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू हैव बैलेंस्ड
मेंटल वेलबींग। इमोशनल रेगुलेशन में आपको बता चुकी हूँ कि आपने अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नाउ साइकोलॉजिकल रेजिलियंस इज अ न्यू टर्म फॉर यू। रेजिलियंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये कहूँगी कि रेजिलियंस इज द एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी। जैसे आपने कोई भी एडवर्स सिचुएशन फेस की, ठीक है, बट नॉट एवरी इंडिविजुअल हैज द पावर of resilience. There are very few people who are resilient, and research has proved that people who are resilient are have better mental well-being. उनका ओवरऑल जर्नल वेलबींग भी बहुत अच्छा होता है, फुली फंक्शनिंग होते हैं, दे ग्रो, दे डेवलप अ लॉट। सो रेजिलियंस है क्या चीज़? रेजिलियंस मीन्स कि आपने कोई लाइफ में बहुत ज़्यादा डैमेजिंग चीज़, बहुत ज़्यादा लॉस एक्सपीरियंस किया। ऑब्वियसली एक नेचुरल रिस्पॉन्स ये है कि वेन एवर यू एक्सपीरियंस लॉस तो आपको फीलिंग ऑफ सैडनेस होती है, ठीक है। दिस इज वेरी नेचुरल। आई एम नॉट इग्नोरिंग द फैक्ट कि नेगेटिव इमोशंस एग्जिस्ट नहीं करते, नेगेटिव इमोशंस डू एग्जिस्ट, बट द थिंग इज दैट कि हमने अब उन नेगेटिव इमोशंस के साथ किस तरीके से कोप करना है, राइट? how we can get out of those negative emotions. So resilience की एग्जांपल ऐसे ले ले जैसे एक इलास्टिक से हम बचपन में खेलते होते थे, गुलेल कहते थे, उसको खींच के जोर से मारते थे, ठीक है। तो रेजिलियंस इज लाइक दैट कि आपको लाइफ ने जितना जोर से खींचा ना, आपने उतनी जोर से बाउंस बैक करके वापस लाइफ की तरफ जाना है, ठीक है। दैट इज रेजिलियंस। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू गिव रेजिलियंस। सो बेसिकली we all have this natural tendency कि whenever we experience loss, start में हमें लगता है that life has come to an end and we won't be able to recover from that loss. But आहिस्ता 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 we come back to our normal and एक लाइफ दोबारा से नॉर्मल शुरू हो जाती है। But then again there are individual differences. Some people take longer time, some people are more resilient. वो कम टाइम लेते हैं और जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। और वो क्यों होता है? रेजिलियंस की भी एक्सरसाइज होती है। वो क्यों होता है? व्हेन यू फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड पॉजिटिव साइड मोर, तो जैसे मैंने आपको बताया हर सिचुएशन की एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। तो आप जब पॉजिटिव साइड की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं तो आप ज्यादा रेजिलियंट होते जाते हैं। ट्राई टू एक्सरसाइज रेजिलियंस एंड ट्राई टू बिकम मोर रेजिलियंट। अब उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट यू अगेन, मैंने पिछली बार भी, अभी पिछली स्लाइड में बताया, दैट यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ। पिछली बार मैंने आपको बताया कि यू शुड बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस इन द लास्ट स्लाइड। अब मैं आपको मेंटल वेलबींग के साथ रिलेट करके बता रही हूँ कि आपकी अपनी वैल्यूज होती है, हर एक की अपनी वैल्यूज है, एक अपना बिलीफ सिस्टम है, अपने गोल्स हैं, ठीक है। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अनदर पर्सन because you're a different person, you have different set of values, you have different set of beliefs, you have different goals, you belong to a different family, a different background. तो आप दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, अपनी अपने आप को अंडरस्टैंड करें, what are your needs, what you want to be, where you see yourself one day. So that is very important. Next is self acceptance, accepting your own self, ठीक है, with kindness and compassion. Now this is very important. We do not forgive ourselves for small actions, for the wrong things that we do. We never unconsciously, आप कह लें कि unconsciously keep that thing in our mind that keeps creating negativity. आप positive direction में सोच ही नहीं सकते। तो प्लीज अपने आप को, अपने फ्लॉज को, nobody is perfect, everyone has flaws, ठीक है। दूर की घास हमेशा हरी नजर आती है, आपको दूसरा बंदा हमेशा लगेगा कि वो परफेक्ट है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके लाइफ में क्या सेटबैक्स चल रहे हैं, उसके लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। तो आपने पहली बात तो ये अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, और दूसरी बात ये कि अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करें, जितनी आपके अंदर शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको भी एक्सेप्ट करें, और अगर हैं कोई ना तो उसके लिए खुद को माफ कर दें, ठीक है। बिकॉज काइंडनेस विद योर ओन सेल्फ, शोइंग कंपैशन टू योर ओन सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। we always emphasize giving and spreading love. We as parents, we as teachers, we are always गिविंग, एक हमारा जो रिलेशनशिप होता है ना वो गिवर वाला होता है, that we are giving love, we are sacrificing for the family, for our children, then we are giving our maximum to our students, we are giving our maximum to our institutions, to our jobs, ठीक है। but what we are not giving is to ourselves, like टाइम नहीं दे रहे हम अपने आप को, हम अपने आप को जेन्युइनली वो कंपैशन जो हम दूसरों को दिखाते हैं हमने कभी अपनी सेल्फ के लिए नहीं दिखाया। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस में प्लीज बी काइंड टू योर ओन सेल्फ एंड ट्राई
to give compassion to your own self. That is very important. And again, last but one for me, it's one of the most important factor, that purpose and meaning in life. That one should have a proper purpose, a proper goal, a proper meaning in life. Because जब आपके पास एक goal होता है, एक life में meaning होता है, तो you are when you wake up every day in the morning, so you wake up with a goal कि आज हमने ये काम करना है. इनको हम कहते हैं short term goals. When you wake up, तो आपके दिमाग में पहली दूसरी तीसरी थॉट ये आती है कि आज क्या क्या कुछ करना है. कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स कि हमने एक घर बनाना है, वी आर पैसे जमा कर रहे हैं, कमेटी निकलेगी, हमने ये करना है वो करना है, हमने जॉब में इस स्टेटस पे जाना है, हमने पीएचडी करनी है, वगैरह वगैरह, वट एवर योर लॉन्ग टर्म गोल्स आर. बट वट एवर द गोल्स यू हैव मेड, the purpose here is that your life should have a meaning, not in terms of your own personal goals. It can be for the other people, for community, वेलफेयर के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज के लिए हो सकता है. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल वेलबींग, आखिर जरूरत क्या है मेंटल वेलबींग के अच्छे होने की? बिकॉज आपकी डेली लाइफ रिलेशनशिप्स को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल होता है. रिलेशनशिप विद योर कोलीग्स, रिलेशनशिप विद योर रिलेटिव्स, जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है आई बिलीव, एंड रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, अचीविंग पर्सनल गोल्स एंड एस्पिरेशंस, जो मैंने आपको बताया कि आप अपने गोल सेट करें, एस्पिरेशंस करें. अगर आप मेंटली फिट हैं, if your mental well-being is good, then it will help you attain your goals and aspiration. And if your mental well-being is good, then it will help a positive sense of self and identity. आपका अपनी बारे में एक positive view create हो जाएगा, that besides the flaws I have, ठीक है, because I have accepted that I have this flaw, but I love myself because these are the characteristics that I have. ठीक है, ऑल्दो दूसरे लोगों की तरह मेरे अंदर ये बातें नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी किसी और में नहीं है. एंड आई लव माई सेल्फ द वे आई एम. ठीक है, but I will always try. It doesn't mean that I will not improve myself. I will always try to improve myself. But, I'm not comparing myself with others, because I am what I am and I'm happy with what I am. So, अपने आप को identify करने में आपको help करता है. Then it helps building strong connections with others. जो मैंने पहले भी बता दिया कि आपको relationships बनाने में, connections बनाने में help करेगा. Navigating life challenges with confidence and hope. लाइफ में बहुत सारे challenges face करने पड़ते हैं, ups and downs face करने पड़ते हैं. अब अगर हम प्रॉब्लम तब आता है जब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आपको बहुत ज्यादा challenges आते हैं ना, तो sometimes we feel overwhelmed, sometimes we feel tired. हमें लगता है कि हम थक गए हैं, और हमें लगता है शायद हम अकेले हैं. तो ये उस टाइम के लिए कि अपना आपका जो मेंटल वेलबींग अच्छा होगा ना, तो इट विल हेल्प यू इन फाइटिंग विद लाइफ चैलेंजेस कॉन्फिडेंस के साथ. बिकॉज कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस जब आता है जब आपके अंदर सेल्फ आइडेंटिटी होती है. यू नो दैट यू हैव द पोटेंशियल, यू नो यू कैन फाइट विद दिस सिचुएशन, यू नो यू कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली मेंटल वेलबींग जो है, इट्स नॉट द सेम एज, जैसे मैंने आपको फिजिकल वेलबींग बताया कि इट्स द एब्सेंस ऑफ डिजीज. हम सिर्फ ये नहीं कहते कि अगर आपको कोई मेंटल इलनेस नहीं है तो इसका मतलब आपका मेंटल वेलबींग बहुत हाई है. नो, बट ऐसा नहीं हम कहेंगे इट्स अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू मेंटेन अ हेल्दी एंड फुलफिलिंग माइंड. ठीक है, सो इट शुड बी मोर पॉजिटिव एंड मोर प्रोएक्टिव टुवर्ड्स पॉजिटिविटी. Next type of well-being is social well-being, which is very important because these days social connections are very important. If you want to grow, your social connections matter a lot. So quality of जो social relationship है ना, that is very important. Social relationships को understand करना is a very complex thing. वो social relationship आपके लिए fruitful होता है जो आपके लिए supporting होता है. ठीक है, there are certain social relationships which are very negative, which are toxic relationships, which are harming your well-being. So you need to understand which relationship is a supporting relationship and which relationship is a negative, a relationship, toxic relationship है जो कि आपको आपकी well-being को, आपकी self-worth को harm कर रहा है.
तो सोशल कनेक्शंस जो हैं दे हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप विद फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप बनाएं, एक कम्युनिटी में आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमने लाइफस्टाइल ऐसा बना लिया दैट वी हम लिमिटेड होते जा रहे हैं, ठीक है। हम ऑफिस ऑफिस से घर, बस दैट्स इट। तो फ्रेंड्स का सर्कल भी यूजुअली जो अब हो गया है वो बहुत कम हो गया है, वो कॉलीग्स से रिलेटेड हो गया। और कम्युनिटी तो आती ही नहीं है कहीं पे, ठीक है। हालांकि अगर आप देखें तो आपको इस्लाम से जो कॉन्सेप्ट मिला है ऑफ हमसाए का ख्याल रखना, ठीक है, ये एक कम्युनिटी बिल्टअप हो रही है। बट वी डोंट हैव टाइम टू स्पेंड फॉर द कम्युनिटी। सो कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, देयर आर सो मेनी क्लब्स दैट यू कैन ज्वाइन, एनजीओज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लाइक एनी एक्टिविटी दैट गिव्स यू प्लेयर एंड इट, आप बिलीव करेंगे इसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट है अपॉन योर मेंटल हेल्थ कि आप इसको प्रैक्टिस करके देखें, यू विल फील गुड। देन सोशल सपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसीविंग इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम अदर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट लिव अलोन। ह्यूमन बींग्स के बारे में कहते ही हैं कि एरिस्टोटल ने कहा था कि सोशल एनिमल है इंसान, तो वी कैन नॉट लिव विदाउट अदर पीपल एंड वी नीड सपोर्टिव हेल्पफुल पीपल जो हमें मुश्किल में हमारा साथ दें, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करें, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करें, इमोशनल भी, समटाइम्स मनी मैटर्स में भी हमें सपोर्ट की जरूरत होती है। ऑल काइंड ऑफ सपोर्ट they can provide. Social acceptance is very important. आप कितने एक्सेप्टेड हैं सोसाइटी में, कि क्या सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर रही है एज अ प्रोफेसर? पीपल सी यू दैट यू हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग अ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। आप क्या है, आपका सोसाइटी में स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, आपकी वर्थ क्या है, व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग इन योर सोसाइटी? सो दिस इज योर ओन सेल्फ परसेप्शन अबाउट योर सेल्फ acceptance, that whether you are accepted in the society or not, whether you are valued by other people or not, this is very important. So if you feel that you are valued and you are accepted, you will always feel good about your social well-being will be high. As a result, आपकी ओवरऑल वेलबींग पे भी इसका इम्पैक्ट होगा। सोशल इंटेग्रेशन, लाइक अभी मैंने कम्युनिटी की बात की कि कम्युनिटी हमारी बहुत कम होती जा रही है। यूजुअली हमें आई थिंक, मैं सिर्फ रमज़ान का महीना आता है जब मैं देखती हूँ कि कोई सोशल इंटेग्रेशन मुझे कहीं पे नजर आती है, व्हेन पीपल जॉइन हैंड्स टुगेदर, डिस्ट्रीब्यूटिंग राशंस एंड एवरीथिंग, ड्राइव्स होती हैं, आप ज़कात देते हैं, ये वो। सो वट एवर रिलीजन यू आर फॉलोइंग, वट एवर फेथ यू आर फॉलोइंग, ये जो आपकी कम्युनिटी ग्रुप होता है, कम्युनिटी एक हेल्प होती है, दिस हैज अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट अपॉन योर मेंटल हेल्थ। सो कम्युनिटी कैन बी एनी क्लब, जैसे लेडीज क्लब्स होते हैं, कमेटी क्लब्स हो सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग दैट पीपल आउटसाइड योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एक लार्जर सर्कल है जिससे आप मिल रहे हैं, उससे आप हेल्प भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उससे आप लर्न भी बहुत कुछ कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो प्लीज, इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स, take time out of your life for such small things. Next is social contribution. What is your contribution in the society? Are you contributing to the greater good? And if you are, then you're feeling good. अब इसमें greater good में बहुत बड़ा काम करने की या बहुत बड़ी कोई चीज़ ईजाद करने की जरूरत नहीं है। For example, if you're a mother and you're bringing upon your children, you are contributing in society. You should be feeling good that yes, I am mother of 2 children and I have brought them up and I'm providing them with education. I'm working woman. ठीक है, ये सारी चीजें मेरी सोशल कंट्रीब्यूशन में शामिल होती हैं। या आई एम अ टीचर एंड आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स एंड व्हेन स्टूडेंट्स आर लर्निंग, दे आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम मी, so this is giving me a sense of social contribution, that I am contributing in the society. I am a contributing member of the society. बुजुर्गों के बारे में भी कहा जाता है कि अगर आप उनको कोई टास्क ऐसा दें जिससे उनको ये फील हो कि वो घर में कुछ कंट्रीब्यूट करें, so they have a more happier life. Next is importance of social well-being. अब social well-being important क्यों है? Because it first of all emotional support आपको provide करता है और आपको जो है stress reduction देता है, ठीक है। At times of when you're feeling down, आपको emotional support मिल जाती है जिसकी वजह से आपकी stress reduce हो जाती है। Secondly, build करता है a sense of belongingness and identity, that you have a group to identify with, that this is a particular group I identify, this is my friends group, this is my family. आपकी identification और belongingness को develop करता है। Developing empathy and understanding others, आपको दूसरों
आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होता है। अब एम्पैथी का मतलब क्या होता है? पुटिंग योरसेल्फ इन अनदर शू। आपका जूता आपको कहाँ पे चुभ रहा है ये आपको ही पता है, दूसरे को नहीं पता, ठीक है? तो व्हाट इज योर सिचुएशन? एम्पैथी मीन्स कि आप अपने आप को दूसरे की सिचुएशन पे रख के देखें कि उसका ये बिहेवियर क्यों था, ठीक है? व्हाई दैट पर्टिकुलर पर्सन बिहेव्ड इन अ सर्टेन वे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि उसकी सिचुएशन क्या थी, why that particular person behaved in a certain way. So it helps in understanding other people. Learning social skills and conflict resolutions. आप social skills means आप social communication learn करते हैं, conflicts को किस तरह से खत्म करना है, social conflicts को। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा social conflicts हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, politics one of the major, एक है क्रिकेट है, मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स जिसके ऊपर बात आराम से शुरू होती है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, लेकिन खत्म जो है वो लड़ाई झगड़े पे हो जाती है। तो हाउ यू हैव टू रिजॉल्व ऑल दोस थिंग्स, यू विल लर्न बाय लर्निंग सोशल स्किल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन किस तरीके से आप फॉस्टर कर सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया, यू लाइक क्ले, सो यू कैन ऑलवेज inculcate, you can develop all these things into yourself and you can see the change. And agar if you are, you know, actually listening, and if you are actually trying to bring about change in your life, then do contact me when you have actually started practicing these things and you felt a change. Do let me know that yes, we have felt the change, because this is something that this is my personal experience. After doing my PhD research, I have felt a lot of change in my own self, क्योंकि हमारा थिंकिंग पैटर्न ही नेगेटिव होता है, हमें सिखाया ही सिर्फ नेगेटिव इमोशंस जाता है। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि किस तरह से हम फॉस्टर कर सकते हैं सोशल वेलबींग को। सबसे पहले तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। सबसे पहले अपनी फैमिली से स्टार्ट करें, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपकी फैमिली में अगर आपके साथ आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, रोज लड़ाई झगड़ा है, घर में सुकून नहीं है, तो कभी भी आपका वेलबींग हाई नहीं हो सकता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट पीस एट होम एट फर्स्ट इन ऑर्डर टू हैव बेटर वेलबींग। देन फ्रेंड सर्कल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड देन हम कम्युनिटी के पास तो बाद में जाते हैं। सेकेंड इज ज्वाइनिंग सोशल ग्रुप्स एंड क्लब्स। अगर आपका फैमिली लेवल पे और फ्रेंड्स के लेवल पे एक अच्छा रिलेशनशिप सबके साथ चल रहा है, तो फिर आप सोशल ग्रुप्स क्लब्स ज्वाइन कर लें, ठीक है? जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं, मॉल टाउन क्लब ज्वाइन कर लें, DHA का क्लब ज्वाइन कर लें, जो भी आपकी कम्युनिटी, आप क्लब ज्वाइन करें। आपकी एक्टिविटीज होनी चाहिए, हॉबीज होनी चाहिए कुछ बिसाइड वर्क एंड यू नो फैमिली। You should take some time out for your own self, for other people. Then voluntary work in कम्युनिटी में वॉलंटियर करें। वॉलंटियरिंग जो होती है, ये दिस आल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इमोशंस इन योरसेल्फ, एंड इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग ओवरऑल वेलबींग। सोशल वेलबींग भी इंप्रूव होता है, आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलती है कि आप कुछ कर रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है? यू आर डूइंग समथिंग। देन पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज, हॉबीज कोई रखें, घर गए, गार्डनिंग की, वट एवर यू लाइक, ग्रुप एक्टिविटीज, फ्रेंड्स के साथ कहीं चले गए। दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट मैटर, ठीक है? सिर्फ काम 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 विल मेक यू रियली disturbed. So you need to take time out for your social activities as well. Practicing effective communication and conflict resolution. आपने बहुत अच्छे तरीके से communication skill सीखनी है, उसको प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है, ये सीखना है। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल वेलबींग। कुछ लोगों का डिसएग्रीमेंट होता है इसके ऊपर, बट रिसर्च हैज प्रूव कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग, क्योंकि आप आपकी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है ना, कि आपकी एग्जिस्टेंस, आपका वजूद जो है वो कहाँ से आया है। दिस एक्चुअली एक्सप्लेन्स दैट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो इट्स कनेक्टिंग टू समथिंग ग्रेटर देन वन सेल्फ, कैन बी गॉड, अ हायर पावर, यूनिवर्स, नेचर, ठीक है? एक कनेक्शन विद योर गॉड, द क्रिएटर है, ठीक है? सेकेंडली, whatever religion or belief system you're following, it always gives you a meaning and purpose in life. So meaning and purpose in life, मैंने स्टार्ट में भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव अ मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, देन यू आर हैविंग अ फुलफिलिंग लाइफ। फिर आपको वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम प्रोवाइड वो कर रहा है। एवरी रिलीजन प्रोवाइड्स वैल्यूज ऑफ लिविंग, बिलीव्स, ठीक है? हर चीज के बारे में एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है योर रिलीजन। सेंस ऑफ ट्रांसेंडेंस इन ऑ के ऊपर मैंने रिसर्च की, एंड कैन यू बिलीव दैट वी फाउंड दैट diabetes patients who were experiencing awe,
were managing their diabetes better than those who were not. So positive emotions, चाहे वो और ही क्यों ना हो, ठीक है, हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड, होप, ये सब इनके ऊपर तो बहुत रिसर्चेस हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि उनका कितना इम्पैक्ट है, नॉट जस्ट ऑन योर साइकोलॉजिकल हेल्थ बट ऑन योर फिजिकल हेल्थ एज वेल, and on your attention and your cognitive abilities as well. ठीक है, it makes you more intelligent, it makes you more experience practicing. I'm talking about practicing positive emotion. जब आप positive emotions को practice करते हैं ना, तो आपके minds ज़्यादा sharper हो जाते हैं और आप ज़्यादा intelligent हो जाते हैं और आप ज़्यादा actively participate करते हैं अपने काम में. स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स जैसे कि मेडिटेशन होगी, प्रेयर होगी, यू आर प्रेइंग 5 टाइम्स अ डे, फिर माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, देयर आर सो मेनी एक्सरसाइजेस फॉर मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सब का बहुत पीसफुल इम्पैक्ट होता है। आप हज से आते हैं, आप उम्रे से आते हैं, तो आप एक ट्रांस में होते हैं, ठीक है, विच इज गिविंग यू अ वेरी फुलफिलिंग, वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस। पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस में इसका बहुत काम है, दैट स्पिरिचुअल वेलबींग की वजह से आप एज अ पर्सन ग्रो करते हैं, बिकॉज ये कनेक्शन विद द गॉड गिव्स यू पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ, गिव्स यू डायरेक्शन इन लाइफ कि आपने किस तरफ को जाना है, ठीक है, आपको अपने बारे में पता चलता है, यू बिकम अवेयर ऑफ योर सेल्फ, वेयर यू स्टैंड, ठीक है, एंड दैट अगेन कॉन्ट्रीब्यूट एज अ लार्जर ओवरऑल वेलबींग के ऊपर इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वेलबींग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे पहले भी कहा कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, देन कोपिंग विद चैलेंजेस एंड एडवर्सिटी। लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आते हैं, एक तो हम सोशल सपोर्ट सीख करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, दूसरी जो हम सपोर्ट सीख करते हैं हम अल्लाह ताला की ज़ात से करते हैं। और ये जो सेंटेंस है ना कि व्हेन यू हैव कम अक्रॉस अ लॉस इन लाइफ, पीपल कम एंड से कि अल्लाह की मर्जी थी, तो ये समटाइम्स इट फील्स कि इट्स वेरी पेनफुल एट द टाइम, but it's actually a very healing sentence when we put everything on the creator, it's because of the creator, ठीक है, तो ये आपका belief system में है ना, right? The spiritual well-being is related to your belief system. So when you are putting everything in Allah's hand or your creator's hand, that whatever is happening is because of his will and it has something better for us which we may not be seeing, but there is something always better and positive. So this gives us the strength to overcome that adversity. Developing a sense of compassion and empathy. स्पिरिचुअल वेलबींग की वजह से ही हम एम्पैथी और कंपैशन डेवलप करते हैं। आपको पता है रिलीजन में आपको है कि कंपैशन शो करें टुवर्ड्स अदर पीपल, हम ज़कात देते हैं, हम सदका देते हैं, ये सारी चीज़ें किस लिए? एक तो ये कि इनइक्वालिटी जो है वो डिफरेंसेस खत्म हो, दूसरा हम अंडरस्टैंड करें दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से। एम्पैथी मीन्स पुटिंग योरसेल्फ एट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, so basically it helps reduce the gap between people, right? And आपकी spiritual well-being के लिए भी बहुत important है experiencing a sense of connection and oneness with others. Spiritual well-being की वजह से जब नमाज के लिए गए हैं, बाजमात आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो सारे कहते नहीं कि सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, तो आप सब whatever status you are from, you're standing together, ठीक है, तो एक वननेस का कॉन्सेप्ट जो है आपको जो मिलता है वो स्पिरिचुअल वेलबींग की वजह से मिलता है। हज पे आप जाते हैं तो आप सब एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, इकट्ठे हैं, ठीक है, वहीं पे नमाज पढ़ रहे हैं, जिसको जहाँ जगह मिली है वो वहाँ, सिर्फ एक ही चीज है कि उसने कनेक्शन बनाना है अल्लाह ताला से, ठीक है, जगह डजेंट मैटर कि वो पहली रो में खड़ा हुआ है, दूसरी रो में खड़ा हुआ है या बहुत पीछे खड़ा हुआ है। How we can foster spiritual well-being. This is very important. As a workshop, I think I should be targeting on how you can develop these things. So spiritual well-being can be fostered through meditation. सबसे पहले meditation exercises available हैं. Online भी आप search करें तो meditation exercises available हैं. Mindfulness practices available हैं. Try to practice meditation. ये हम सिर्फ exercises से नहीं कर सकते, हम prayer से भी कर सकते हैं. 5 times prayer meditate करें means
माइंडफुल होके प्रेयर करें। ऐसे नहीं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं तो 100 बातें हमारे दिमाग में आ रही होती हैं उस वक्त कि अच्छा मैंने नेक्स्ट ये काम करना है, मैंने ये करना है, मैंने लेक्चर प्रिपेयर करना है, मैंने बच्चों को ये करना है, मैंने यूनिवर्सिटी का ये काम करना है। नो, व्हेन यू आर प्रेइंग, meditation means that you are mindful of what you are doing, that you are connected to the God directly, then it is considered as mindfulness or meditation. तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। कनेक्टिंग विद नेचर इन आउटडोर, वॉक के लिए बाहर जाया करें। गर्मियों की छुट्टियों में नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, अपने आप को ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ विद द नेचर, बिकॉज nature is created by God, and when you see nature, obviously the first emotion, positive emotion that comes to you is, we always say Alhamdulillah, Subhanallah, like we always praise God for whatever He has created. So हम gratitude learn करते हैं. What is this? Gratitude is a very powerful positive emotion which produce wonders. And gratitude towards people, gratitude towards Allah, both type of gratitudes are very important. And unfortunately हमारी सोसाइटी में हमें लगता है कि अगर किसी ने हमारे साथ कुछ अच्छा किया और हम उसको कोई gratitude शो कर लेंगे, हम उसको थैंक यू कर देंगे, तो हम छोटे हो जाएंगे। नहीं, याद रखिए, आप जब पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, आप कभी भी छोटे नहीं होते। यू विल फील गुड, you will always feel good, and the other person will always feel good. Positive emotions have a ripple effect. Ripple effect कहते हैं, जब आप पानी में एक पेबल को मारते हैं ना, तो पानी में से बबल उठता है और वो बबल बढ़ता है, बाहर की तरफ निकलता है। तो यू नो, रिपल इफेक्ट मीन्स दैट पॉजिटिविटी इज कंटेजियस जस्ट लाइक नेगेटिविटी। कि अगर मैंने एक पॉजिटिव बात की, या मैंने आपसे पॉजिटिव तरीके से बात की, या मैंने आपको एक स्माइल दी, तो ऑब्वियसली नेचुरली आपके भी फेस पे स्माइल आई, और आपने भी वही पॉजिटिव माइंडसेट लेके आप आगे गए। लेकिन अगर मैंने आपसे नेगेटिव बात की, चिढ़ के बात की, और एक नेगेटिव एक्सप्रेशन दिया, तो obviously I'm setting the mood, like I am triggering you for the next step. So your behavior depends upon what I am doing. ठीक है? So अपने आप को हमेशा समझें that you are the in charge of your own emotions and other people's emotions as well. मैं जो करूंगी उसका इफेक्ट मेरे पे भी होगा और बाकी लोगों पे भी इफेक्ट होगा। Engaging in spiritual rituals and practices, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है उसके spiritual rituals practices में engage करें। नमाज, ईदों पे आप देखें तो उसका भी यही कॉन्सेप्ट है। Exploring philosophical and spiritual techniques, बहुत फिलॉसफी का सब्जेक्ट अब इतना ज्यादा पढ़ा और पढ़ाया नहीं जाता, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फिलोसॉफिकल आपको जो स्पिरिचुअलिटी है ना, दैट गिव्स यू फिलोसफी ऑफ लाइफ, व्हाई यू आर हियर, एग्जिस्टेंस, ठीक है, tells you about life and death and what you are doing here. ठीक है, so it's kind of a philosophical concept. Seeking guidance from spiritual leaders and mentors. There are many videos available who are spiritual leaders, mentors, and but whoever you like, you think is better, you should listen to those. Spiritual well-being is highly personal and individual. Obviously हर एक के अपने beliefs होते हैं, तो बहुत ही पर्सनल होता है ये, और हर एक का अपना होता है। आई थिंक आपको किसी के साथ उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातों पे बहस भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो करना चाहिए जो आपको satisfaction दे। Always do what makes you happy. Next, last one is personal growth. Personal growth is the most important aspect of well-being, because if you grow personally, growth का मतलब ये नहीं है कि आप बड़े हो गए हैं तो आपने और बड़े होते जाना है। growth यहाँ पे means as a human you are growing, psychologically you are growing, right? As an individual you are growing. So psychology, this growth, personal growth is very important. पर्सनल ग्रोथ जो होती है वो डेवलप होती है सेल्फ अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग से। सबसे पहले आप अपने आप के बारे में जानते हैं, अपने इमोशंस के बारे में, अपने बिलीव्स के बारे में, अपने फ्लॉज के बारे में, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, आपके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, यू नो एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। सो सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। देन यू इम्प्रूव योर इमोशनल रेगुलेशन, अपने अंदर रेजिलियंस डेवलप करते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज को एनहांस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लर्न करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करते हैं, जिसकी वजह से आपका सेल्फ एस्टीम हाई होता है, एंड इट गिव्स यू मीनिंगफुल गोल्स एंड पैशंस। आपको लाइफ में मीनिंगफुल गोल्स देता है कि दिस इज द गोल ऑफ माय लाइफ, आई हैव टू डू दिस, एंड आई एम पैशनेट अबाउट माय जॉब, आई एम पैशनेट अबाउट व्हाटएवर आई एम डूइंग, सो इट गिव्स यू अ डायरेक्शन। ठीक है, देन इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। Cultivate healthy habits and behaviors. अच्छे habits और behaviors जो है वो आपके अंदर डेवलप करने, क्योंकि because you're developing
personally. So you have to inculcate healthy habits, healthy behaviors, positive things, positive vibes only. Improve relationships and communication skills. Obviously relationships चाहे घर में है, friends में है, community में है, co-workers के साथ है, you have to improve your relationship in order to have personal growth. आपको लगता है कि आप लोगों से कट कर personally grow कर सकते हैं, तो it's a wrong concept. You cannot grow when you are not in connection with people or not in good terms with people. So it's very important to have healthy relationships if you want to grow personally. Increase emotional intelligence एंड एम्पैथी. नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आजकल यूज हो रही है. पहले हम सिर्फ इंटेलिजेंस की बात करते थे, जिसमें हम मैथमेटिकल एबिलिटीज और वोकैबुलरी वगैरह टेस्ट कर लेते थे. बट इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ टर्म कि आप इमोशनली एक सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं, राइट? बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आप लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं तो आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज या वोकैबुलरी हेल्प नहीं कर रही होती. तो हाउ एवर, मतलब जितने भी आप ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपका आईक्यू कितना भी हाई है, बट योर प्रॉब्लम स्किल्स do not rely on your IQ, they rely on your EQ. How your emotional quotient जो है वो affect करता है how you are going to deal with the situation. And showing empathy to other people, that you understand their point of view is very important. Find a sense of fulfillment and satisfaction in life. Obviously लाइफ में फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन मिलेगी तो ही आप पर्सनली ग्रो करेंगे. इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनल ग्रोथ की? दैट वी रियलाइज our own potentials, we adapt to challenges and change, that we are ready for change, right? Always remember that healthy, fulfilling individuals are always ready for change. People who are rigid, who are not ready for change, face problems in mental well-being में, overall general well-being में problem face कर सकते हैं. Adapt to challenges and change. कितने भी challenge आएंगे आपने उनको उनके साथ adapt करना है, उनको face करना है और change करना है. Develop a growth mindset. सबसे पहले तो अपना growth वाला mindset बनाएं कि you want to grow. सिर्फ मैंने यहीं पे नहीं बैठे रहना, that this is the end of my life. I have achieved what I have achieved. मैंने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जो कुछ बनना था बन लिया. No, you need to learn this, that the process of growth goes on till your death. You keep on developing, you keep on growing as an individual each and every day. Although your cognitive abilities are declining by age, lekin your learning is not declining. Learning to how to behave with other people, learning how to be a nicer person, learning how to be a contributing person, learning how to be a progressive person, that is very important. Enhance one's overall quality of life को आपको enhance करती है. जब आपकी personal growth होती है, आप अपने आप को अच्छा feel करते हैं, आपकी self esteem high होती है, boost होती है, so you feel happy, तो आपकी obviously quality of life भी अच्छी होती है. Increase one's self of happiness and life satisfaction. Obviously this is connected with your happiness and life satisfaction. जो मैंने आपको बताया कि आप खुश रहेंगे जब आप personally grow करेंगे. किस तरह से आप personal growth को foster कर सकते हैं? This is what you need to learn. That you need to learn new skills and hobbies. हॉबीज ढूंढें, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए. आपको फारिग टाइम पे you should have something, you should have a skill besides teaching. You should have another skill. पेंटिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, ड्राइविंग हो सकता है. It can be anything you like. It depends what it's a food for your mental health. Seeking feedback and constructive criticism. Now, always remember that आप जो भी पढ़ा रहे हैं आप do try to take feedback from your students, what they think about you. Do try to take feedback from your peers, what they think about you, and please take that criticism very constructively. Abhi previously, when 2 days ago MS की हमारी क्लास खत्म हुई, तो I asked my students, I'm teaching MS Health Psychology and MS Clinical Psychology. I asked my students to give me feedback about how you felt. Because when we started, तो मैंने उनको कहा था कि मैं क्योंकि पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो the day I'm going to start और एंड मैं आपका पहला पर्सपेक्टिव लूंगी और एंड भी लूंगी, क्या आपकी लाइफ में कोई चेंज आया. तो I got all positive feedbacks, but there was one feedback in which one student said that, ma'am, you are gender biased, right? So I took it very positively.
राइट. आई इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है, बिकॉज मैं अपने आप को उस तरह से नहीं देख सकती जिस तरह से एक थर्ड पर्सन देख सकता है, राइट. सो ऑलवेज टेक feedback from other people. And you know what I said, who is not gender biased in our society? We are all gender biased. Either we are tilted towards this side or that side, but we are always gender biased. Of preference of a male child, you know, rights, women rights, whatever the discussion is, we are always tilted. We find very few people who are not gender biased. But again, I took it very seriously, and I thought that, and I said that okay, I will improve myself. So it's not something आपने अपने आप को उस वक्त छोटा नहीं समझना कि आपके स्टूडेंट ने आपको ये फीडबैक दिया, आपने उसको कंस्ट्रक्टिव लेना और आपने कहना यस यू राइट. मतलब मैं अपने आप को उस तरह से देख नहीं रही, राइट, बट यू कैन सी एंड यू कैन टेल मी, सो आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ नेक्स्ट टाइम, right? And then try to bring about that change in your own self. Okay, next is setting and achieving goals. आप गोल सेट करें, छोटे छोटे गोल सेट करें. कई दफा बड़े गोल्स नहीं अचीव होते तो हमें डिससेटिस्फैक्शन होती है, तो हम कहते हैं छोटे गोल्स बनाएं. छोटे छोटे गोल्स बनाएं जो इजीली अचीव हो जाएं, और जैसे ही गोल अचीव होता है सेटिस्फैक्शन मिलती है तो हैप्पीनेस मिलती है. प्रैक्टिसिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड जर्नलिंग. अपने आप को रिफ्लेक्ट किया करें, रात को सोने से पहले सोचा करें सारा दिन आपने क्या किया, किसके साथ आपने ज्यादती की, कब आपने बहुत नेगेटिव बात कर ली, कौन सी बात आपको नहीं करनी चाहिए थी, कौन सी बात आपने सही की. कुछ लोग जर्नल लिखते हैं, अपनी थॉट्स लिखते हैं. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज काइंड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, बट डू try to practice this, because this is how you can improve yourself. This is how you can take yourself towards personal growth. Engaging in therapy and counseling. And if you think that you're facing a lot of difficulty, you're feeling overwhelmed, you're overburdened because of work and family and all that, then there's no harm in seeking therapy and counseling. Okay? Reading and learning from other experiences. बुक्स रीड किया करें और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से लोग जो शेयर करते हैं उससे सीखा करें. स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन, चैलेंजिंग oneself बाय प्रायोरिटाइजिंग पर्सनल ग्रोथ. जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं निकलते, आप पर्सनल ग्रोथ की तरफ नहीं जाते. हम इसलिए ग्रो नहीं करते क्योंकि हम पर्सनल कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं निकलते. मेहनत करनी पड़ेगी. Individuals can continue to evolve, improve, and thrive, leading to a more fulfilling and satisfying life, अगर आप ये सब कुछ अपने अंदर पैदा कर ले तो. अब देर आर टू कॉन्सेप्ट. एक वेलनेस का कॉन्सेप्ट है, एक वेलबींग का कॉन्सेप्ट है, जो कि इंटरचेंजेबली यूज होते हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेलनेस जो है वो ज्यादा फिजिकल कॉन्सेप्ट है. फिजिकल वेलनेस की हम बात करते हैं, यानी कि फिजिकली अगर कोई हेल्दी है तो हम उसको कहते हैं फिजिकल वेलनेस. बट वेलबींग एक ब्रॉडर टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, जो कि फिजिकल वेलबींग को भी आपने देखा कवर कर रहा है, साइकोलॉजिकल को भी कर रहा है, इमोशनल को भी कर रहा है, स्पिरिचुअल को भी कर रहा है, पर्सनल ग्रोथ को भी कर रहा है, हर चीज को कर रहा है. देन रिलेशनशिप क्या है, हैप्पीनेस का, लाइफ सेटिस्फैक्शन का और वेलबींग का. अब अगेन आपको कहूंगी कि वेलबींग के बारे में जब मैंने आपको बता दिया ना, तो इट्स अ ब्रॉडर टर्म. वेलबींग तब होगा जब आप हाई, तब होगा जब आप हैप्पी होंगे. वेलबींग हाई तब होगा जब आप लाइफ में सेटिस्फाइड होंगे. सो इन ऑर्डर टू हैव गुड वेलबींग, यू नीड टू बी हैप्पी, यू नीड टू बी सेटिस्फाइड विद योर लाइफ. बिकॉज हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस तो सिर्फ एक पॉजिटिव इमोशन है. जैसे मैंने अभी आपको बताया, ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव इमोशन है, ऑ पॉजिटिव इमोशन है, होप पॉजिटिव इमोशन है. तो हैप्पीनेस इज ऑल्सो पॉजिटिव इमोशन. इट्स सब्जेक्टिव, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन योर सर्कमस्टांसेस. बिलीव मी, अगेन मैं आपको कहूंगी कि आप कहते हैं कि हम कैसे खुश रहें जब हालात ही अच्छे नहीं है, तो हालात डिटरमिन नहीं करते कि आपने खुश रहना है कि नहीं रहना. वी हैव सीन पीपल हैप्पी राइडिंग ऑन रिक्शा, and we have seen people in anxiety sitting in Mercedes. So आपके हालात कभी भी डिटरमिन नहीं करेंगे हैप्पीनेस को. हैप्पीनेस सब्जेक्टिव स्टेट है, जो आपके पास कभी कुछ नहीं भी है तो भी आप हैप्पी फील कर सकते हैं, बिकॉज इट्स योर इन योर ओन कंट्रोल. अभी आपको शायद ऑड लगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे हैप्पीनेस को, कि इन एनी सर्कमस्टेंसेस आई हैव टू रिमेन हैप्पी, तो फिर आपको पता चलेगा कि इट्स एन इमोशनल, इट इज एन इमोशन दैट यू कैन लर्न बाय प्रैक्टिसिंग. लाइफ सेटिस्फैक्शन जो है वो आपकी कॉग्निटिव इवैल्यूएशन, व्हाट यू थिंक अबाउट योर लाइफ. Are you happy with it? Do you have all the resources, whatever you want? ये सारा कुछ जो भी हमने पढ़ा ना, that determines your life satisfaction, whether you're satisfied with your life or not. Same केस जॉब का है कि जॉब अगेन
कुछ चीजें जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट आई विल टॉक अबाउट जॉब सेटिस्फैक्शन लेटर ऑन। कुछ चीजें नहीं है, लेकिन जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं वो ये है कि आप अपने इमोशंस को खुद रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने अंदर खुद चेंज लेके आ सकते हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे खुद काम कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मेंटल हेल्थ और वेलबींग का आपस में क्या रिलेशनशिप है। मेंटल हेल्थ और वेलबींग के बारे में आपको कहूंगी कि मेंटल हेल्थ जो है वो एक ओल्डर कॉन्सेप्ट है, जो कि हम पहले भी जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि इन द बिगनिंग साइकोलॉजी वाज ओनली रिलेटेड टू डिजीज, मेंटल इलनेसेस, सिम्टम्स एंड इट्स ट्रीटमेंट। बट नाउ एक न्यूअर एस्पेक्ट की बात करें कि हाउ वी कैन स्टे हैप्पी। मैं ये नहीं कह रही कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एडवर्सिटी, चैलेंजेस, हाउ वी कैन स्टे हैप्पी, हम ये बात करें। तो मेंटल हेल्थ जो है वो है एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, कि एक इंडिविजुअल जिसको एंजाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो हम कहते हैं उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। एक इंडिविजुअल जिसको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस है, हम कहते हैं उसकी मेंटल हेल्थ बुरी है और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन मेंटल वेलबींग जो है वो अगेन ब्रॉडर टर्म है, वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कह रहा कि डिजीज नहीं है, वो ये कह रहा है कि क्या इंडिविजुअल एक फुलफिलिंग इंडिविजुअल है, क्या वो कंट्रीब्यूटिंग इंडिविजुअल है, इज द इंडिविजुअल फ्लरिशिंग और नॉट, thriving or not. This is what well-being is saying. Again, well-being is a broader term than mental health. डिफरेंस क्या है वेलबींग और मेंटल हेल्थ के बीच में? वेलबींग जो है वो पॉजिटिव एक उसमें फुलफिलिंग स्टेट है ऑफ बीइंग, दैट यू डोंट जस्ट एग्जिस्ट, यू आर हैप्पी एंड फुलफिल्ड इंडिविजुअल। देन इट इंक्लूड्स मल्टीपल डायमेंशंस जो हमने डिटेल में कर ली, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, पर्सनल ग्रोथ। Then it focuses on the presence of positive experiences and qualities. Happiness पे focus करे, life satisfaction पे, purpose in life पे, emphasizes growth and development and flourishing, that you should grow always. ठीक है, लेकिन मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ पेन और डिजीज इन द बॉडी। ठीक है, वेलबींग इज like overall physical fitness and vitality, while mental health is essential. Well-being goes beyond the absence of problem to cultivate a rich and fulfilling life. Again, well-being is a broader term, जो सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, बल्कि एक थ्राइविंग इंडिविजुअल को एक्सप्लेन कर रही है, फ्लरिशिंग इंडिविजुअल को एक्सप्लेन कर रही है। लेकिन हमारे लिए ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छी मेंटल हेल्थ होगी तो वेलबींग अच्छा होगा। अब ये रिलेटेड किस तरह से है कि मेंटल हेल्थ की दो टाइप्स हैं, एक होती है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ और एक होती है नेगेटिव मेंटल हेल्थ। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ वेलबींग, रेजिलियंस एंड फ्लरिशिंग। सो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि वेलबींग इज पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। कि अगर हम मेंटल हेल्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करें, कि जिन लोगों की, या ये कॉन्टिन्यूम की तरह होता है, एक साइड पे पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है, एक साइड पे नेगेटिव मेंटल हेल्थ है, तो वो इंडिविजुअल्स जिनकी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है, जो कि रिजिलियंट हैं, जो कि फ्लरिश कर रहे हैं, थ्राइव कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि उनका वेलबींग अच्छा है। वो इंडिविजुअल्स जिनमें मेंटल इलनेसेस हैं, डिस्ट्रेस है, इम्पेयरमेंट है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो दूसरे कॉन्टिन्यूम पे हैं, तो उनकी हमेशा वेलबींग पुअर होगा। वेलबींग को मेजर करने के कुछ तरीके हैं, जो कि ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट ही मेजर करते हैं, खुद से आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स जो कि आपको बता सकते हैं कि वेदर योर वेलबींग इज गुड और नॉट। तो उसमें सबसे पहला जो सब्जेक्टिव मेजर है ना, सब्जेक्टिव का वर्ड हम तब यूज करते हैं जब एक चीज वेरी करती है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, for me it is for me a situation is, you know, there is a certain situation for me, that situation is painful, but for the other person that situation is creating happiness, he is happy about that situation. It can be एग्जाम का रिजल्ट हो सकता है, जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आए वो हैप्पी नहीं होगा, जिसके अच्छे मार्क्स आए वो हैप्पी होगा। ठीक है, अगेन सब्जेक्टिविटी इसमें और भी है, और वो क्या है कि एक बच्चा ऐसा भी होगा जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं, वो फिर भी हैप्पी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि शायद उसका टारगेट गोल जो था वो फर्स्ट आना था। और एक बच्चा जिसके बहुत बुरे मार्क्स आए हैं, लेकिन वो इसलिए हैप्पी होगा कि वो पास हो गया। सो हैप्पीनेस इज वेरी सब्जेक्टिव, राइट? तो सब्जेक्टिव मीन्स दैट एनीथिंग दैट differs from one individual to another individual, right? So that is your own perspective of yourself. So there are some subjective questionnaires जो कि self reported भी होते हैं, life satisfaction rating scales भी हैं, जो कि हम दे देते हैं
टू पार्टिसिपेंट्स और हम उनको कहते हैं कि आप सब्जेक्टिवली आप बताएं कि व्हाट डू यू थिंक योर वेलबींग, वेयर इज योर वेलबींग। अब उसमें डिफरेंट क्वेश्चन है अबाउट योर वेलबींग जो आपने अपने अकॉर्डिंगली बताने हैं कि आपको क्या लगता है, बट दिस इज सब्जेक्टिव, मे बी दैट इज योर ओन पर्सपेक्टिव। जैसे मैं हो सकता है अपने अंदर सिर्फ अच्छा देखूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अभी कि आई टुक feedback from my MS students and everybody was saying positive about myself and I was feeling so happy that oh yeah they like me, they like my positivity and all that, and suddenly one of them said this, ठीक है। नाउ अब वो जो सब्जेक्टिव एलिमेंट था वो ये था कि मेरा अपने बारे में क्या ख्याल है, ठीक है, बट व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ मी इज नॉट सब्जेक्टिव, वो फिर हो सकता है उनकी सब्जेक्टिव ओपिनियन, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिव इज समथिंग जो कि सबके लिए इक्वल हो, एक स्टैंडर्ड मेजर है। नेक्स्ट है भी आपके ऑब्जेक्टिव मेजर्स, जैसे कि आपकी इनकम है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जॉब सेटिस्फैक्शन, योर फिजिकल हेल्थ, हेल्थ केयर एक्सेस आपको कितनी है, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव मेजर्स हैं। साइकोलॉजिकल मेजर्स अगेन जो है ये साइकोलॉजिस्ट ही मेजर कर सकते हैं। इमोशनल स्टेट्स और रेजिलियंस को मेजर किया जा सकता है। मेंटल हेल्थ सिम्टम्स डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, स्ट्रेस को मेजर करने के लिए, उनके लेवल को मेजर करने के लिए उनके अकॉर्डिंगली हम थेरेपी देते हैं। मेजरमेंट क्यों जरूरी है? बिकॉज इफ देयर इज एनी इंडिविजुअल हु सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम देन दैट इंडिविजुअल नीड्स थेरेपी एंड काउंसलिंग। एंड इफ यू थिंक दैट आपका वेलबींग अच्छा नहीं है, तो फिर मैंने जो आपको फॉस्टर करने के तरीके बताए, तो यू कैन डेवलप दोज थिंग्स इन ऑर्डर टू फॉस्टर बेटर वेलबींग। टू टारगेट क्या है? पर्सनल ग्रोथ। टारगेट क्या है? लाइफ सेटिस्फैक्शन। टारगेट क्या है? जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग एंड इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट, इनको मेजर करने के लिए भी हमारे पास स्केल्स हैं जो कि स्टैंडर्डाइज स्केल्स हैं। आगे मैंने स्केल्स के नाम भी दिए हुए, मैं अभी आपको स्लाइड शो कर दूंगी। सोशल कनेक्शन मेजर्स जो है वो आपके सोशल सपोर्ट को मेजर कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें कई दफा नहीं पता होता कि हमारे पास बहुत अच्छे सोशल, हम समझते हैं हमारा सोशल ग्रुप बहुत अच्छा है, बट एक्चुअली दैट सोशल ग्रुप इज वेरी टॉक्सिक। जहाँ पे कंपटीशन होता है, जहाँ पे ताने दिए जाते हैं, जहाँ पे आपको आपकी सेल्फ को मिनिमाइज किया जाता है, हमेशा वो रिलेशनशिप टॉक्सिक होता है। तो एक तो आपका कुछ स्केल्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी साइज ऑफ सोशल सपोर्ट को मेजर करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप को मेजर करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी सेटिस्फैक्शन विद द अदर इंडिविजुअल को मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के हम सोशल सपोर्ट के लिए स्केल्स यूज करते हैं। फिजिकल एनवायरमेंटल मेजर्स जो हैं वो क्या है? एक्सेस टू नेचुरल एनवायरनमेंट्स, ग्रीन स्पेसेस। क्या आपके पास गर्मियों की छुट्टियां होती हैं कि आप आउटिंग के लिए बाहर जाएं, आप रिलैक्स कर सकें, आप शाम को वॉक करें, आपके घर के पास पार्क है कि नहीं है, क्वालिटी ऑफ लिविंग इन कंडीशन, आपकी हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कि आपको ओपन स्पेस मिलती है काम करने के लिए, क्वाइट एनवायरनमेंट है, फॉर मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए है। एयर एंड क्वालिटी, वाटर क्वालिटी पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको पता है कि आई थिंक एयर क्वालिटी तो बहुत पुअर है हमारी, बट दिस मैटर्स अ लॉट। आपकी हेल्थ के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है और आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट है। बहुत ज्यादा काम अब हम इको एंजाइटी के ऊपर कर रहे हैं, विच इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पुअर एटमोस्फेयर जो कि हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरल मेजर्स आपके बिहेवियर्स को मेजर करते हैं कि आपकी कितनी फिजिकल एक्टिविटी, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हाउ मेनी डेज अ वीक कर रहे हैं, एक दिन में कितने घंटे कितने मिनट कर रहे हैं, स्लीप क्वालिटी कितनी है, स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन इज अ न्यू टर्म फॉर यू। और ड्यूरेशन, मैंने आपको स्लीप की ड्यूरेशन के बारे में और क्वालिटी के बारे में बता दिया कि इंटरप्टेड स्लीप नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूस स्लीप होनी चाहिए एटलीस्ट 7 to 8 hours। स्लीप हाइजीन मीन्स कि अगर आपका बेडरूम और आपका बेड इज मेंट टू स्लीप, then we psychologists say that it should be kept for that purpose only। तो अगर आप अपने बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं, बेड पे बैठ के मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो इट इज डिस्टर्बिंग योर सेल्फ स्लीप हाइजीन। इसलिए क्योंकि हमारे जो होते हैं वो कंडीशनिंग हो जाती है, एसोसिएशन होती है ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया के साथ। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, व्हेन दे से दैट आई एम अनएबल टू स्लीप एट नाइट, why? Because you have been doing so many different stress related activities on your bed, that now your bed is associated with anxiety. So when you lie down on your pillow, there should be nothing stressful related to your bed.
right? So whenever you lie down, you just fall asleep. So always remember that sleep hygiene emphasizes कि हर काम को करने के लिए अलग कमरा है, खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम है, ठीक है, टीवी देखने के लिए टीवी लाउंज है, काम करने के लिए स्टडी है। बेडरूम को आपने सिर्फ और सिर्फ स्लीप पर्पस के लिए यूज करना है, तो आपकी स्लीप हाइजीन अच्छी होगी, तो आपकी स्लीप क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। सब्सटेंस यूज एंड एडिक्शन, हम सबको पता है कि वो it's harmful and injurious to health, and here I'm talking about simple cigarettes and vapes जो जिनका आजकल बहुत concept आ गया that I think they are not harmful or whatever the new generation is saying, but they are equally harmful. Research has proved that they are equally but sometimes कुछ लोग कुछ research ये भी कह रही हैं कि ज़्यादा harmful है because it has added flavor artificial जो कि कैंसर कॉज करें। सो किसी भी तरह के एडिक्शन बिहेवियर से परहेज करें। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं, जो कि आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा कितनी है, that determines your happiness, that determines your well-being. Poverty rates कितने हैं आपके, इनकम इनक्वालिटी कितनी है, क्या आप जितनी मेहनत कर रहे हैं क्या आपको उतनी पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, एक्सेस टू एजुकेशन है आपके बच्चों के लिए, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं या नहीं है। अब जो टूल्स हम यूज करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया ना तरीके कौन से होते हैं ना, देयर सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स जो हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग वेल बीइंग, उनके मैं आपको सिर्फ नाम दिखा देती हूँ, because these are all standardized tools which can only be used and administered with the help of a psychologist. और ये जो टूल्स हैं, ये हैप्पीनेस, ये जो आपको सबसे पहले आप देख रहे हैं सर्वेज ऑफ क्वेश्चनियर, दीज आर हैप्पीनेस क्वेश्चनियर्स, लाइफ सेटिस्फैक्शन क्वेश्चनियर, ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट स्केड्यूल है, ये इमोशंस को मेजर करता है। और सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है पॉजिटिव इमोशन स्केल, दैट इज डेवलप्ड बाय दिस वाज माय पीएचडी वर्क, सो आई हैव डेवलप्ड दिस स्केल एंड दिस इज इंडिजिनस स्केल, जिसके थ्रू आप अपने पॉजिटिव इमोशंस को मेजर कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि if after measuring you feel that you are lacking positive emotions, तो आप positive emotions को inculcate कर सकते हैं। It's very easy कि with practice you can develop positive emotions within yourself. Then psychological well-being के कुछ scale हैं, ये बहुत important scale है, Warwick Edinburgh mental well-being scale है, RIFS का सबसे commonly used हो रहा scale well-being को measure करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप मेजर करवाएं तो आप यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट। क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करने के बहुत सारे स्केल्स हैं, यहाँ पे मैंने कुछ थोड़े से लिखे हैं एग्जांपल के तौर पे। वर्ल्ड WHO का स्केल सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज हो रहा है, आइटम्स भी कम है और स्कोरिंग क्राइटेरिया भी उसका ईजी है। इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए बेतहाशा स्केल थे कि ये स्लाइड भी मेरी पूरी भर गई, लेकिन मैंने जितने लिखे, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया रिलेटिवली न्यूअर टर्म है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन डीलिंग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल्स जो कि यूज हो रहे हैं और आप यूज कर सकते हैं अपनी रिसर्चेज में, शायद आप यूज करते भी रहे होंगे। माइंडफुलनेस एंड रेजिलियंस स्केल हैं जो कि आपकी माइंडफुलनेस को और रेजिलियंस को मेजर करें। मैंने यहाँ पे माइंडफुलनेस के स्केल अलग लिखे हैं और रेजिलियंस के 4 स्केल अलग लिखे हैं। इसके अलावा बेतहाशा और भी स्केल्स हैं, ये वो स्केल्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज हो रहे हैं, बहुत पॉपुलर स्केल्स हैं, उनके मैंने नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और ये अगेन जब आप मेजर कर रहे होते हैं तो इट्स काइंड ऑफ अ फीडबैक मैकेनिज्म जो कि आपको ये बता रहे हैं कि आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक कितनी कम है एंड कितनी आपने और फास्टर करनी है अपने अंदर। फिजिकल मेजर्स में बायो फीडबैक आपको बताता है आपका ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर, डायबिटीज, व्हाटएवर। बॉडी मास इंडेक्स आपका कैसा है, आपको एक्सरसाइज मतलब जरूरत है कि नहीं है, आप अपनी एज के अप्रोप्रिएट वेट गेन कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर है, ये सारे फिजिकल मेजर्स हैं, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। स्लीप क्वालिटी जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, स्लीप हाइजीन पे भी बात कर चुके हैं। स्लीप क्वालिटी को मेजर करने के भी बहुत सारे स्केल्स हैं। पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा मशहूर है, सिंगल आइटम स्लीप क्वालिटी स्केल है, विजुअल एनालॉग स्केल है, मॉर्निंग क्वेश्चनियर, इंसोम्निया को मेजर करने के लिए भी स्केल्स हैं। स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी ऑब्वियसली तो वेलबींग अच्छा होगा। बिहेवियरल इंडिकेटर्स में क्या है, क्या आप वाकई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, सोशल कनेक्शंस और सपोर्ट कितनी है आपके पास, एंगेजमेंट, मीनिंगफुल एक्टिविटीज हैं कि नहीं है लाइफ में। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपकी इनकम कितनी है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कितना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी है, अपॉर्चुनिटीज कितनी अवेलेबल है। सोशल कनेक्शन मेजर्स को भी हम वैसे सोशल कनेक्शंस को एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट दीज आर द स्केल्स दैट मेजर योर सोशल सपोर्ट।
जो मैंने आपको बताया कि आपको बताएंगे क्या आपकी सोशल सपोर्ट एडिक्वेट है या नहीं है, क्या आपकी सोशल सपोर्ट वाकई में आपको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है या आपको उल्टा नुकसान दे रही है। सो दीज आर द स्केल्स जो कि आपको इसका फीडबैक देंगे। देन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस स्केल है, ऑब्वियसली अगर आप एंजाइटी फेस कर रहे हैं, आप डिप्रेशन फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस है, फैमिली से रिलेटेड स्ट्रेस है, जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस है, व्हाटएवर स्ट्रेस इट इज, तो देयर आर स्केल्स दैट कैन मेजर दैट। बेतहाशा स्केल्स हैं, मैंने सिर्फ 2 लिखे हैं, लेकिन इन शॉर्ट जितने भी यहाँ पे मैंने आपको टूल्स बताए, कितने बेतहाशा हमने फैक्टर्स पढ़े, ये जो मैं एंड जिस बात पे करना चाह रही हूँ ये कि जो ये कॉन्सेप्ट है वेलबींग का, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, इन सारे स्केल से भी पूरी तरीके से वो मैयर नहीं हो सकता, ठीक है। सो लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम मैयर करें। नाउ लाइफ सेटिस्फैक्शन की पहले ही बात हुई थी, वेलबींग की बात हुई थी कि लाइफ में अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आपका वेलबींग अच्छा है। बेसिकली वेलबींग अगेन एक ब्रॉडर टर्म है, लाइफ सेटिस्फैक्शन उसका एक कंपोनेंट है। और लाइफ सेटिस्फैक्शन किस चीज से इन्फ्लुएंस होता है? आपके रिलेशनशिप से, आपसे हेल्थ से, और पर्सनल ग्रोथ से। सो वही सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपने वेलबींग में पढ़े हैं, वही आपकी लाइफ सेटिस्फैक्शन को भी डिटरमिन करते हैं। अब जॉब आपकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ वेलबींग, ठीक है, विच इज लिंक टू यू मेंटल हेल्थ। आपकी अच्छी मेंटल हेल्थ होगी तो आप जॉब में अच्छे होंगे। अगर अच्छी मेंटल हेल्थ होगी, जॉब में अच्छे होंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आप ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। सो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो वी कैन नॉट सेपरेट देम। सो इफ यू वांट सेटिस्फैक्शन इन जॉब, यू नीड टू वर्क ऑन योर वेलबींग। टेक्निक्स कैसे कर सकते हैं? सबसे ज्यादा जो मेरा लास्ट में फोकस है ना, वो ये है कि आप टेक होम मैसेज क्या आप लेके जा रहे हैं, व्हाट आर यू लर्निंग फ्रॉम दिस वर्कशॉप और ट्रेनिंग, दैट व्हाट आर द टेक्निक्स बाय विच यू कैन एनहांस योर वेलबींग। आपको पता चल गया कि वेलबींग की इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ यू हैव टू एनहांस योर वेलबींग। सबसे पहले माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज अपनी लाइफ में एक स्केड्यूल बनाएं जिसमें आप अपने आप को टाइम दें, जिसमें आप मेडिटेट करें, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी माइंडफुलनेस एक्सरसाइज हो सकती है, उनको करने का तरीका क्या होता है। मैंने आपको बताया प्रेयर माइंडफुलनेस के साथ भी बहुत अच्छी मेडिटेशन है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करें। ये ना सोचें कि हमने अगर किसी की तारीफ कर दी, किसी का शुक्र अदा कर दिया तो हम छोटे हो जाएंगे। हम कभी छोटे नहीं होते, हम हमेशा बड़े ही होते हैं। हम अच्छा फील करते हैं, दूसरा भी अच्छा फील करता है। जर्नल में लिखना शुरू कर दें, अपना ग्रैटिट्यूड दूसरों के साथ शेयर करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। हमेशा मैं सबको ये कहती हूँ, whenever people say that we are very depressed, I ask them, the first step I ask them is to start counting their blessings. Every day you wake up, write 2 blessings that you have. Sometimes patients हमें कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है लाइफ में, कि हम किस चीज के लिए थैंकफुल हैं। वी आर नॉट थैंकफुल फॉर एनीथिंग। सो आई से यू वोक अप टुडे एंड यू आर ब्रीदिंग, बी थैंकफुल फॉर दैट। तो आप छोटी छोटी बातों से शुरू करेंगे तो आप काउंट करना शुरू करें कि आप कितनी चीजें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं जिसके लिए यू आर थैंकफुल to God. And when you are, believe me, when you are only thinking about positive things, तो your mind has only positive thought. Thought जो होती है ना, वो फूड होता है आपके माइंड के लिए। अगर आप अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट देंगे तो वो पॉजिटिव सोचेगा, अगर आप उसको नेगेटिव थॉट देंगे तो वो सिर्फ नेगेटिव सोचेगा। फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें, जिम ज्वाइन करें, पार्क्स में जाएं, घर में करें। वीडियोस अवेलेबल हैं बेतहाशा ऑनलाइन, आप घर में कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि जब आप जिम जाते हैं या पार्क जाते हैं तो आपके पास पार्टनर भी होता है, तो फिर एक सोशल सपोर्ट का एलिमेंट भी होता है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर आप नहीं टाइम निकाल सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप घर में 15 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज आ गई हुई हैं, ऑनलाइन वीडियोज हैं, 15-15 मिनट की भी वीडियोज हैं। कोई एक वीडियो फॉलो कर लें, रोज का उसका पैटर्न बना लें। याद रखें, एक्सरसाइज वेट रिडक्शन के लिए नहीं है, इट्स फॉर योर वेल बीइंग, मेंटल एंड फिजिकल। सोशल कनेक्शंस अपने इंप्रूव करें, लोगों के साथ रिजॉल्व करने की कोशिश करें। उन लोगों को अपनी लाइफ में से कट कर लें जो कि जिनके साथ आप प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं कर सकते और वो कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन और नेगेटिविटी हैं। कम्युनिटी को बिल्ड करने की कोशिश करें, अच्छे काम करें जिसकी वजह से आप अच्छा फील करें।
अगर कर सकते हैं तो स्कूल बनाएं, इफ़ यू कैन अफोर्ड, किसी को स्पॉन्सर कर दें बच्चे को पढ़ने के लिए, मस्जिद बनाएं, वट एवर गिव्स यू हैप्पीनेस, डू कम्युनिटी बिल्डिंग में ज़रूर हिस्सा डालें, बिकॉज इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, गिव यू अ सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ। देन सेल्फ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सबको टाइम देते हैं, हमने स्टूडेंट्स को टाइम दे दिया, हमने जॉब को टाइम दे दिया, हमने बच्चों को टाइम दे दिया, हमने खुद को टाइम नहीं दिया। सेल्फ केयर के लिए हमारे टाइम ही नहीं है, ठीक है। और हम समझते हैं सबसे ज्यादा इग्नोर्ड एरिया है हमारी हेल्थ, हमारा टाइम, हमारा आराम इज नॉट इम्पोर्टेंट, बिकॉज हमने प्रायोरिटीज बनाई हुई हैं, जॉब पे जाना है, फिर घर की फैमिली को भी टाइम देना है, ठीक है, और भी काम करने हैं। सो ऑलवेज टेक टाइम फॉर योर ओन सेल्फ, जिसमें आप सिर्फ सेल्फ केयर करें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम सिखाते हैं, जो कि आप इजीली सीख सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। उसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, इसमें ऑनलाइन अगेन मैं आपको कहूँगी वीडियोस भी अवेलेबल हैं डीप ब्रीदिंग की, कि डीप ब्रीदिंग से आपके लंग्स खुलते हैं, मसल रिलैक्स करते हैं और आपकी एंग्जाइटी दूर होती है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में हम बारी बारी सारे मसल्स को रिलैक्स करवाते हैं और आपको डीप ब्रीदिंग करवाते हैं। गाइडेड इमेजरी में हम मसल रिलैक्सेशन के साथ अच्छी इमेजिनेशन करवाते हैं, सो एज अ रिजल्ट द इंडिविजुअल फील्स रिलैक्स्ड। पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ जो है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। वो कैसे आप कर सकते हैं? बस यू कैन सेट गोल्स लाइफ में, अपना कोई पैशन ढूंढें, कोई हॉबी ढूंढें, whatever you want to do. For example, when I was child, I wanted to do painting or drawing का मुझे बहुत शौक था, but I came into this profession of psychology, and now that whenever I get time, तो मुझे शौक होता है कि अच्छा मैं कैलीग्राफी करूँ, मैं पेंटिंग करूँ, ड्राइंग करूँ, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करूँ। So that gives you, it should be something that gives you happiness. Positive thinking and reframing, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करें और रीफ्रेम करें, नेगेटिव थॉट को चेंज करें पॉजिटिव में। इमोशनल रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट, अपने इमोशंस को रेगुलेट करें और मैनेज करने की कोशिश करें। सिचुएशन टू सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, आपके इमोशंस, उनको मैनेज करें, उनको कंट्रोल करें, उनका प्रॉपर एक्सप्रेशन सीखें। रिजिलियंस डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि resilience is the ability to bounce back from adversity, कि डिफिकल्ट सिचुएशन आई लेकिन आपने उस डिफिकल्ट सिचुएशन में से अपने आप को कितनी जल्दी बाहर निकाला। Dwelling in that negativity will always increase misery, ऑलवेज रिमेंबर। तो जब तक आप अपने आप को उसमें से बाहर नहीं निकालेंगे, आप हैप्पियर फील नहीं करेंगे, आप फुलफिल्ड फील नहीं करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं, उसमें हम टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं कि किस तरीके से अगर आपको स्ट्रेस हो रही है तो आप गोल सेट करें, प्रायोरिटीज सेट करें, आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो पहले करें, जिसकी वजह से आप अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। सेल्फ कंपैशन एंड सेल्फ फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अपने आप को माफ कर दें उन छोटी छोटी गलतियों के लिए जो आपसे सरजद हो गई हैं। अपने ऊपर रहम करें, अपने साथ कंपैशन शो करें। यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, यू ऑल्सो हैव नीड्स, यू ऑल्सो नीड रेस्ट, यू ऑल्सो हैव अ राइट टू बी हैप्पी, ठीक है। तो हमेशा अपने आप को ब्लेम मत करें फॉर द लॉसेस यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी engaging in activities that promote flow, flourishing and engagement। अब ऐसी एक्टिविटीज में अपने आप को engage करें जिससे आप पर्सनल ग्रोथ आपकी जो है वो डेवलप हो रही है, आप फ्लरिश कर रहे हैं, ठीक है। यू फील दैट you are a contributing member of the society, you are doing something, you are developing as an individual, ठीक है। then practice self awareness and introspection always at night, जिसमें मैंने आपको बताया कि think what you have done the whole day, how you have behaved, and और अगर कोई सिचुएशन गलत हो गई है तो what could you have done अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन आए, तो how would you handle that situation at that time? Introspection is again looking back into what has been done, how you felt at that time, and next time if you face that situation, how are you going to handle it? But better, मतलब in a more effective way, उसको हैंडल करने का क्या था। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंगनेस, अपनी कम्युनिटी के साथ बिलोंगिंगनेस डेवलप करें, कम्युनिटी के साथ अपने आप को लिंक्ड करें, because community gives you your identity, your Pakistani, your Punjabi, your Sindhi, your whatever, it gives you the identity that you belong to a certain community, ठीक है, और उस कम्युनिटी के लिए आप काम भी करें। फिर पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, और ये दिस इज माय ओन एडिशन। आई ऑलवेज से दैट वट एवर वी हम अपने, अभी मैंने एक दो अभी पहले भी मैंने ये बात रिपीट की है कि आप अपने दिमाग को जो सोच देंगे ना, वो फूड है फॉर योर माइंड।
इफ यू गिव योर माइंड पॉजिटिव थॉट, तो वो सारा आप पॉजिटिव सोचेंगे. इफ यू आर फीडिंग योर माइंड विद नेगेटिव थॉट्स, तो आप नेगेटिव सोचेंगे. तो पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशंस क्या होते हैं? दैट यू यू आर अफर्मिंग योरसेल्फ with positivity, that you are doing a good job, you are a progressive member, you have worked really hard, right? So there are so many different affirmations that you can give to yourself, that you are doing a dual job, right? So many things. Everybody has a personal life. आप खुद देख सकते हैं कि आपकी क्या है. तो आपको ये रिपीट करनी है. When you are repeating these thoughts in your subconscious, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वही पॉजिटिव थॉट चलती रहती है. जब आपके इर्द गिर्द के लोग आपको फीड करते रहते हैं विद नेगेटिव थॉट, दैट आपके अंदर ये शॉर्टकमिंग है, आप खाना अच्छा नहीं पकाती हैं, आप ये काम अच्छा नहीं करते, आप इतना अच्छा कमा के नहीं लेके आ रहे, आप बच्चों की नीड्स पूरी नहीं कर रहे, व्हाटएवर द नेगेटिव थॉट्स आप सुन रहे हैं फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, ठीक है, दैट आर इम्पैक्टिंग योर मेंटल हेल्थ. तो स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ पॉजिटिव थॉट्स, ताकि हम उन नेगेटिव थॉट्स का इम्पैक्ट जो है वो कम कर सकें. So these techniques can help individual cultivate a positive and fulfilling life, enhance their well-being, can improve their life satisfaction, job satisfaction, and improve overall quality of life. This is very important. अगर ये चीजें आप सीख लें तो आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं. Thank you very much from my side, and I'm open for question and answers. If you have any questions, you can ask me. ज्योति मैम, मैं माइक अलाउ कर रहा हूँ जिनके हैंड रेज है. डॉक्टर ताहिरा मैम, आपका मैंने माइक अलाउ किया, मैम से क्वेश्चन कर ले. मैम आयशा, आपका मैम मैंने माइक अलाउ किया है, आप मैम से क्वेश्चन कर लें. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. जी आयशा महमूद बात कर रही हूँ मैं. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? साइकोलॉजी में शुक्र अल्लाह का, मेरा साइकोलॉजी से तो दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन दो चीजें मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी अगर आप माइंड ना करें. नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक तो बताइए. आपने शुरू में ही कहा कि हमें नेगेटिव थॉट से बचना चाहिए, और ये मेरा जिंदगी का असूल है कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है. लेकिन आप शुरू में ही कह देती हैं कि पाकिस्तान में जो हमारे हालात हैं, किसी की हेल्थ पूरी तरह से ठीक तो हो ही नहीं सकती. तो ये शुरू ही में एक नेगेटिव चीज कहना कि पॉसिबल ही नहीं है, ये मुझे नहीं ठीक लगी बात थोड़ी सी. दूसरा ये कि थ्रू आउट द लेक्चर the discussion जो है ना, that should be inclusive instead of saying you all the time, you learn this, you इस तरह से अगर हम वी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारे जो ऑडियंस है ना वो हमारे साथ ज्यादा अटैच हो जाते हैं. तो मुझे ये सारा कि जैसे आप छोटे बच्चों को बता रहे हैं, मैं इवन छोटे बच्चों को भी जब हम आते हैं तो हम उनके साथ मिलके उनका एक हिस्सा बन जाते हैं. तो वो सेंटेंस, ये लफ्ज मुझे बार बार बहुत बहुत करता रहा, तो मुझे लगता है कि हमें वी का लफ्ज इस्तेमाल करें, और छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इवन जब आपके ऑडियंस एडल्ट हो तो भी जरूरी है. और ये ज्यादातर हम प्रैक्टिस करते हैं, असल इशू ये होता है कि हम इनको नाम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट नहीं होता. जी तो बिल्कुल ठीक है. आई एम सॉरी अगर कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल अगर नहीं. आप आप अपने बल्कि लेक्चर को सुने और थ्रू आउट यू की बजाय को उसको वी से रिप्लेस कर दें, तो आई थिंक इट विल बी मोर इफेक्टिव. थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर फीडबैक. आई ऑलवेज टेक फीडबैक एक कंस्ट्रक्टिव तरीके पे मैं लेती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. इसका मैं आपको जवाब दे दूं. पहला वाला क्वेश्चन जब आपने कहा कि शुरू में मैंने कहा कि पाकिस्तान में हेल्थ जो है वो, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारा क्वालिटी ऑफ एयर इंडेक्स बहुत पुअर है, फूड क्वालिटी बहुत पुअर है. बट साथ ही मैंने आपको ये बताया कि हम एज हेल्थ साइकोलॉजिस्ट या एज पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट क्या ट्रेन करें कि इंस्टेड आपको अगर कोई डिजीज है भी इनफैक्ट, ठीक है, तो भी आपने उसको पॉजिटिवली किस तरीके से कोप करना है. ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक इंडिविजुअल जो है वो थ्रू आउट एक हेल्दी लाइफ गुजारे, उसको कोई प्रॉब्लम या कोई डिजीज ना हो. डिजीजेस एंड प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स होती हैं, बट द एम्फेसिस इज ऑन कोपिंग, ऑन हाउ यू आर कोपिंग, हाउ यू आर getting out of that situation. This is the answer for your first suggestion. Second suggestion, मैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कि
जनरली इस तरह से कह देने से एक पहली एक दिमाग में एक नेगेटिव सी चीज बैठ जाती है कि शायद ये पॉसिबल ही नहीं है। आती जाती बिल्कुल रहती हैं, पॉसिबल ये है, हर बिल्कुल साल यहाँ पॉसिबल। बीमार होते हैं, ठीक हो जाते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो आपके साथ हमेशा रहती हैं, उनके लिए कोप करना डेफिनेटली वी हैव टू लर्न टू कोप फॉर सच थिंग्स। और कुछ चीजें आती जाती रहती हैं। बहरहाल आपकी बात में समझ आ रही है, आप किस उसमें कह रही थी, पर्सपेक्टिव में कह रही थी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और मैडम मैं दूसरा भी आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाह रही हूँ। आप ने बहुत अच्छा सजेशन दिया दैट वी ऑलवेज एम्फसाइज के जो वी का कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा ग्रेटर कॉन्सेप्ट होता है और ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। बट हेयर मैंने जानबूझ के यू का वर्ड इस्तेमाल किया बिकॉज आई वॉज अ साइकोलॉजिस्ट हेयर एंड आई वॉज हेयर एज अ ट्रेनर for you people. Obviously I know that you're all very senior members here, but teaching जब हम as a psychologist बता रहे होते हैं ना, तो मैंने ये नहीं बताना होता कि हम मिलके ये काम करेंगे। आई हैव टू मेक माई पार्टिसिपेंट्स, माई सब्जेक्ट्स, माई पेशेंट्स अवेयर दैट दे हैव दिस एबिलिटी, दे कैन डू इट। सो मैंने बार बार आपको बताया कि एक्सेप्ट करें योर फ्लॉज, एक्सेप्ट करें योर इमोशंस, वट एवर यू आर फीलिंग, उसकी एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। तो जब तक मैं यू का वर्ड इस्तेमाल नहीं करती ना, वो एक्सेप्टेंस आपके अंदर नहीं आती। जब तक मैं एक वी का वर्ड यूज करती रहूंगी ना, तो वो एक मॉब बिहेवियर क्रिएट होता रहेगा। हम वी ओके, वी आर उससे होता है वी कि में तो सब उससे शामिल हो गए। जब आप आप का इसको लफ्ज इस्तेमाल करते साइकोलॉजिकली हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जब वी आप में वी सब का शामिल हो लफ्ज गए। सॉरी जब आप वी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे आपको लगता है कि जो आपको बात समझा रहा है ना, वो किसी दूसरी दुनिया से नहीं है, वो भी नहीं नहीं, हमारी दुनिया से है। मैं आपका तो बिल्कुल हम पॉइंट उससे ऑफ व्यू ज्यादा समझ रही क्लोज हूँ। फील करते हैं, हम उससे ज्यादा जी क्लोज फील करते हैं, और हम उसकी बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कि जब हमें लगता है कि जो हमें समझा रहा है या कोई बात सिखा रहा है, वो भी हमारी कम्युनिटी से है, हमारे ही जैसा है, उसके भी इश्यूज हमारे जैसे हो सकते हैं, जी वो मैम, भी बिल्कुल नॉर्मल मैं आपका इंसान है। पॉइंट ये समझ गई हूँ, ये लेकिन मेरा point मेरा जी आपका पॉइंट मैं बिल्कुल समझ गई, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जो स्टैंड था वो ये है कि टू मे फॉर मेकिंग पीपल इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस, हमें समटाइम्स ये वर्ड यू का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि जब हम वी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, तो इंक्लूसिवनेस आ जाती है। नोबडी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी का मतलब है वी आर ऑल हियर, सो आई एम नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज ये तो सबने करना है ना, it's not my responsibility. But when I'm using the word you, means this is upon me, I have to do it, I have to change myself, this is the time when I have to change myself. So that was the thing. जहां तक आपका पॉइंट है, मैं आपका पॉइंट भी बिल्कुल समझ गई हूँ, वो भी बिल्कुल ठीक है, वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक साइकोथेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ कि दैट इज इम्पॉर्टेंट। बट आई वैल्यू योर सजेशन, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैम टाइम कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट मैम वेट कर रही हैं। जी जी, चलें, ठीक है। थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच मैम। everybody. Thank you for your time, and thank you so much. It was nice having a discussion with you. Allah Hafiz, Allah everybody.